वेलकम टू इट्स वायरल लिंक। ऐसा कई बार हुआ है जब सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यूज में ऐसी बातें रिवील की है जो फेमस होने की एक नेगेटिव साइड दिखाती है। दिस इंटरव्यूज हैव बीन सेंसेशनल बिकॉज सेलिब्रिटीज हैव स्पोकन विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 इंटरव्यूज के बारे में बताएंगे which showed the dark side of celebrity lives. This is going to be a very interesting video, so आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, कंगना रनौत। कंगना ने जब कॉफी विद करण में नेपोटिज्म की बात की थी, it shocked the whole industry. You can even call her the flag bearer of the nepotism debate. Not only that interview, but she also talked about how Bollywood favors the insiders and how they treat outsiders like they don't even exist in hundreds of interviews. Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the Yeah, word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. नंबर 9, सिद्धांत चतुर्वेदी। जब गहराइयाँ रिलीज हुई थी उस टाइम लोगों से सिद्धार्थ को बहुत हेट मिली थी। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग। He said something which was so true and exposed the hypocrisy of the audience. उन्होंने बताया कि कैसे ऑडियंस चाहती थी कि वो हमेशा एक आउटसाइडर बनकर रहे और ऐसी इमेज के साथ वो आगे बढ़े। मगर जब सिद्धांत ने धर्मा, एक्सेल और YRF जैसी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। Everyone started questioning how he became so successful in such a short span of time. What happened is after Gully Boy, I was like underrated. Everybody was there, and then suddenly when Gehraiya came out, everybody was saying that he's overrated. So I did a Yash Raj film, I did a Dharma film, and I did an Excel film right now. People were like, how is he getting so much? He's an outsider. How is he getting into the lobby? Number 8, रणबीर शोरे। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके और किसी और पावरफुल सेलिब्रिटीज के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वो सेलिब्रिटी आपका करियर खत्म करने में लग जाता है। ऐसा ही कुछ रणबीर शोरे के साथ हुआ था इन द अर्ली 2000s, जहां उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने बॉयकॉट कर दिया था। He had put all sorts of allegations on him and asked everyone else in the industry to not give him any work. Till the fiasco happened when I was seeing his daughter. Yeah, you ask anybody from the film industry, anybody, most of them will say it off record. I can say it on record. I have no problem. This fully happens. Ganging up against someone, elbowing them out, standing on somebody's toes, scuttling somebody's career. ये सब होता है. Number 7, अक्षय कुमार। हम सब जानते हैं कि अभी अक्षय के करियर लो फेज से गुजर रहा है। His films are not working despite him giving the best in every way. इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में बहुत खुश होते हैं जब उनकी फिल्म नहीं चलती है। See, this is what fame is all about. आप टॉप पर होते हैं तो हर कोई आपसे एसोसिएट होना चाहता है, बट when you begin to fail, वही लोग आपके मजाक बनाने लग जाता है। Listening to Akshay saying all these things truly broke our heart. People love seeing it. What does that mean? People love seeing it. People in the industry. Yeah. That I have seen it myself. Number 6, Vidya Balan. We all should appreciate that somebody like Vidya Balan had given an interview where she talked about how people in the industry fat shame others. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है और इसके बारे में विद्या ने कई इंटरव्यूज में बात की है। जस्ट इमेजिन, उनके कैलिबर के एक एक्टर को फिल्म मेकर आज भी कास्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को विद्या के बॉडी वेट से प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन इफ दिस इज द केस इन 2024, then even the future doesn't look promising. There would be people who tell me that, oh, you've got such a beautiful face, why don't you lose some weight? People would say, you don't look like you enjoy exercise at all. And do you know, Namita, I am someone who works out, dedicated. Number 5, शाहरुख खान। शाहरुख के इंटरव्यूज भी उनके फिल्म्स की तरह बहुत पॉपुलर है। इन इंटरव्यूज में उन्होंने काफ़ी बार ऐसी बातें कही हैं जो शायद कोई और इतना ओपनली ना कह पाए। जैसे कि उन्होंने बोला है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लास्ट नेम दैट ही ऑलवेज हैज टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म। इतने बड़े ग्लोबल आइकन होने के बावजूद भी उन्हें लोग एंटी नेशनल कहकर ट्रोल करते हैं एंड उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करने को कहते हैं।
questioning your Indianness, yeah, your patriotism. And that's one thing I think no Indian should be questioned, because you don't have to ask, you don't have to explain that why you love your motherland or why you love India, how you are. And I'm very proud, very strangely, not strangely actually, very naturally, I'm very proud because my dad was a freedom fighter. Number 4, विवेक ओबरॉय। हम सब जानते हैं विवेक का वो इंटरव्यू जहां पर उन्होंने सलमान को ओपनली चैलेंज किया था और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें रिवील की थी, मगर इसके बाद उनका करियर ही डाउनफॉल पे चला गया। ही स्टार्टेड गेटिंग इग्नोर्ड बाय बिग प्रोड्यूसर्स एंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिल्म्स। उनके इस बैड फेस के बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात की एंड बताया कि कैसे इंडस्ट्री आपके खिलाफ चली जाती है अगर आप एक पावरफुल सेलिब्रिटी को पब्लिकली टारगेट करते हो तो। उनके इस बैड फेस के बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात की एंड बताया कि कैसे इंडस्ट्री आपके खिलाफ चली जाती है अगर आप एक पावरफुल सेलिब्रिटी को पब्लिकली टारगेट करते हो तो। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। द एक्ट्रेसेस आर ट्रीटेड अनइक्वली इन अ लॉट ऑफ वेज एंड इसके बारे में अनुष्का ने कई इंटरव्यूज में बात की है। जैसे कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री इतनी मेल डोमिनेटेड है कि शूटिंग के दौरान होटल रूम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। द एक्टर्स गेट एवरीथिंग ही डिजायर्स बट इट इज द एक्ट्रेस हु हैज टू कॉम्प्रोमाइज एंड स्टे इन बी ग्रेड होटल्स। You always feel, you feel that discrimination. In fact, it's not just with money, it's also in general. There's a discrimination in general in terms of, like, I swear to God, it's like, even if you're an outdoor schedule, you know that the guy is going to get a better room than you. No. Yes. Are you serious? Yes. Number 2, कंगना रनौत। कंगना ने कई बार इंडस्ट्री की डार्क साइड को एक्सपोज की है, so much कि we had to include her twice in this video. उन्होंने रिसेंटली ही एक न्यूज़ चैनल पर कास्टिंग काउच के बारे में काफ़ी चीज़ें रिवील की थी। She said the actresses has to please the producers or the star in order to get a role. उन्होंने ये तक कह दिया एक स्टार एक एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है एंड उससे ऐसे डिमांड्स करते हैं जिनके बारे में वो पब्लिकली बात नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूँ, मैं जिसको मिली हूँ A लिस्ट, B लिस्ट, A+, biggest superstars. The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets, and next film comes next. Number 1, अनुराग कश्यप। चाहे वो बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी की कमी हो या फिर स्टार्स की टेंट्रम्स, अनुराग हैज नेवर फियर्ड टू टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्स के अनरियलिस्टिक डिमांड्स की वजह से फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक प्रोड्यूसर फिल्म मेकिंग से ज़्यादा स्टार्स की डिमांड पूरे करने में मोर देन हाफ ऑफ द बजट स्पेंड कर देता है एंड इसके वजह से मूवी का क्वालिटी भी खराब हो जाता है। My most ridiculous story I heard was that somebody who had a chef who charged 2 lakh rupees per day to make this strange healthy food जो देख के लगता था खाना है ये तो बर्ड फीड है, इतना छोटा सा आता था। 2 lakhs a day. 2 lakhs a day. So that was it for today's video and let me know in the comments in सब में से which video shocked you the most. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।